कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, मज़े हैं? ओके, मज़े के साथ पढ़ाई करते रहो। लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। देन वी हैव स्टडीड अबाउट एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने, और मैंने बोला था कि आज कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर एग्जाम्पल 5.2 से। अब आप बोलोगे सर सीधा एग्जाम्पल 5.2, एग्जाम्पल 5.1 नहीं, एग्जाम्पल 5.1 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। सो एग्जाम्पल 5.1, एग्जाम्पल 5.1 दैट इज़ इन होमवर्क। आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम्पल 5.1, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोग कर लोगे। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5.2। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter। कैसी सिचुएशन दी हुई है? A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field. Suppose this is external field. And in this external field B vector, what is placed? Bar magnet. This is north pole of the bar magnet, this is south pole. What will be the direction of magnetic moment? South to north. Axis of bar magnet makes an angle 30 degree with field. So this angle, that is 30 degree. Experiences a torque of 0.016 Newton meter. What is given? Torque. Torque, that is 0.016 Newton meter. Theta, that is 30 degree. What is the magnetic moment of the magnet? पहले क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट m। चलो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। टॉर्क दिया हुआ है तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। क्या था फॉर्मूला टॉर्क का? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक मोमेंट, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा, दैट इज 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? 0.016 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field, that is 800 Gauss। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 800 Gauss। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है B, that is 800 Gauss। Gauss means 10⁻⁻4 टेस्ला। So 800 into 10⁻⁻4 टेस्ला। तो B मिल गया 800 into 10⁻⁻4 into sin 30। What is the value of sin 30? That is 1/2। 2 into 4, that is 8. So 400 into 10⁻⁻4. So this can be written as 1.6 into 10⁻², upon this can be written as 4 into 10⁻², 10⁻², 10⁻² will get cancelled. 1.6 upon 4, that is 0.4. So what is the answer of this? 0.4 ampere meter square. So magnetic moment, that is 0.4 ampere meter square। चलो A सॉल्व हो गया, B पे आ जाते हैं। क्या बोलता है B? What is the work done in moving it from its most stable to most unstable position? स्टेबल पोजीशन और अनस्टेबल पोजीशन के बारे में हम पढ़ चुके। When dipole is placed in external magnetic field, at the time if magnetic field and magnetic moment both are in the same direction, at the time theta, that is 0, and this position is called most stable position। When magnetic field is in the opposite direction to magnetic moment, at the time
theta, that is 180 degree, and this is called unstable equilibrium position, most unstable position. क्या ठीक? अब क्या बोले, what is the work done in moving it from its most stable, it means this is theta 1, work done in moving it from its most stable position to most unstable position, तो फाइनल एंगल क्या बन जाएगा 180 डिग्री. सो दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2. वर्क डन इन मूविंग डाइपोल फ्रॉम one angle to another angle, that is mb cos theta 1 minus cos theta 2, because this is magnetic dipole, therefore magnetic moment into magnetic field. इलेक्ट्रिक डाइपोल होती तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास, कितनी मिली 0.4. मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास कितनी है 800 इंटू 10⁻⁻⁴. चलो cos 0 माइनस cos 180, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 8 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻1 10⁻³ cos 0 क्या बने 1 माइनस cos 180 क्या बने -1, 1 minus 1, that is 1 plus 1 2. So 4 into 2 8, 8 into 8 that is 64, 64 into 10⁻⁻3. So this is nothing but 0.064 joule. Work done in moving this magnetic dipole from its most stable position to most unstable position is 0.064 जूल. चलो तो बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है. कौन से पार्ट पे आ जाते हैं, सी. सी क्या बोले, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. आप सोलेनॉइड के बारे में सोच लो. नाउ इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट व्हाट वी हैव टू टेक, सोलेनॉइड. ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड दैट इज गिवन, एरिया ए दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 1000 टन्स, नंबर ऑफ टन्स n इज इक्वल टू 1000. बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट सेम लेनी है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो फाइंड करना है हमें. सोलेनॉइड के लिए मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और हमें करंट निकालना है. हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर करंट कैरिंग वायर, m इज इक्वल टू NIA, निया याद है, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू NIA. नंबर ऑफ टर्न्स 1000, इलेक्ट्रिक करंट तो हमें निकालना है. एरिया कितना दिया 2 इंटू 10⁻⁴. चलो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है 0.4, तो करंट निकालें तो क्या बनेगा 0.4 अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.2, 0.4 अपॉन 0.2 दैट इज 2 एम्पियर. कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 2 एम्पियर. सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज 2 एम्पियर. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं. अब हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए. जितने भी फॉर्मूला मैंने करवाए हैं उतने फॉर्मूला याद होंगे तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5.2. कौन सा एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है 5.1. आइए सॉल्व करते हैं एक और एग्जाम्पल 5.4. कौन सा सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5.4. एग्जाम्पल 5.4. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5.0 सेंटीमीटर.
south pole, north pole, and length of this bar magnet, that is 5 centimeter. At a distance of 50 centimeter from its midpoint, they are asking us to find somewhere here. This point is at a distance 50 centimeter from the center of this bar magnet. At point P, we have to find magnetic field, that is the magnetic field on the axis of bar magnet. And here I am taking another point, that is point Q. This distance is also 50 centimeter. This is magnetic field on the equator of bar magnet. The magnetic moment of the bar magnet is given, that is 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. चलो, मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस वी वांट टू फाइंड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर. चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब. यह फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज दिस 50 सेंटीमीटर इज वेरी लार्ज in comparison to 5 centimeter. It means this distance is very small. Suppose this is L and this is R. It means R is much greater than L. When R is much greater than L, it means the point of consideration is very far away from the dipole. Then we can apply this formula, mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. Mu naught, that is 4 pi into 10 raised to minus 7 upon 4 pi into 2 into m, that is 0.4 upon r cube. What is r? That is 50 centimeter. So 50 into 10 raised to minus 2. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? 10 raised to minus 2 raised to 3. 4 pi will get cancelled. 2 into 0.4, that is 0.8 into 10 raised to minus 7 upon, this is 50 into 10 raised to minus 2, that is 0.5. 50 into 10 raised to minus 2, that is 0.5. 0.5 raised to 3, that is 0.125. So this can be written as 0.8 upon 0.125. सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 6.4 into 10 raised to minus 7 Tesla. So magnetic field on the axis of dipole, that is 6.4 into 10 raised to minus 7 Tesla. चलो, सेकंड क्या फाइंड करने को बोले? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब. Mu naught upon 4 pi into m upon r cube. This is nothing but half of the magnetic field on the axis. If I divide this formula by 2, then I will get mu naught upon 4 pi into m upon r cube. So magnetic field on the equator is half of the magnetic field on the axis. What is the magnetic field on the axis of dipole? That is 6.4 into 10 raised to minus 7 Tesla. So this is nothing but half of 6.4 into 10 raised to minus 7 Tesla. That is nothing but 3.2 into 10 raised to minus 7 Tesla. ये हमें बन गया, ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल. क्या ठीक? तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इजीली आप लोग इस चैप्टर के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. खाली आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए. तो फॉर्मूला याद होंगे तो इजीली आप लोग एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. चलो, एग्जाम्पल 5.4 हो गया. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.4. अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स
is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Magnetic field B, that is 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field, if the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable? So first stable and in second unstable equilibrium. So for stable equilibrium, what is the condition? For stable equilibrium, magnetic moment should be parallel to magnetic field. When magnetic moment is parallel to magnetic field, at that time dipole is said to be in equilibrium. Here bar magnet is given. Bar magnet is nothing but magnetic dipole. So for stable equilibrium, M vector should be parallel to B vector. When M vector is parallel to B vector, at that time theta will be 0, and when theta is equal to 0, then what they are asking, what is the potential energy of the magnet in each case? They are asking us to find potential energy. Potential energy U is equal to minus mb cos theta. याद हो तो क्या फॉर्मूला था? U इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट हटाएं क्या मिलेगा? कॉस थीटा. सो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम एज इट इज़ 0.32 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.15 इंटू कॉस थीटा दैट इज 0 और 0.1 0.32 इंटू 0.15 दैट यू विल गेट 4.8 into 10 raised to minus 2 joule. Unit of energy that is joule. Minus 4.8 into 10 raised to minus 2 joule. चलो सेकंड केस पे आ जाते हैं. केस बी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन थी? When magnetic moment is in the opposite direction to magnetic field, at that time dipole is said to be in unstable equilibrium condition. So for unstable equilibrium condition, theta must be 180 degree. The potential energy in this case will be minus mb cos 180. What is the value of cos 180? That is minus 1. So minus mb into minus 1, that is plus mb. What is the value of mb? M into b, that is 4.8 into 10 raised to minus 2. So potential energy in this case is nothing but plus 4.8 into 10 raised to minus 2 joule. So potential energy in stable equilibrium condition, that is minus 4.8 into 10 raised to minus 2 joule. In stable equilibrium condition, potential energy will be minimum. जब कोई भी डाउन टू अर्थ होता है तब वो कौन से स्टेट में होता है? स्टेबल. एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम. पर जब पावर बढ़ जाता है, ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल. तो अनस्टेबल होने के लिए एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम. तो ये कौन सी कंडीशन हुई? अनस्टेबल. यहाँ पे एनर्जी कैसी है? मिनिमम, माइनस में है एनर्जी. So this is minimum value of potential energy. Therefore dipole is in stable equilibrium condition. चलो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.4. अब आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.3 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क. कौन सा न्यूमेरिकल आपको होमवर्क मिला? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.3. एक एग्जाम्पल भी मिल चुका होमवर्क में. कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 5.1. चलो 2 होमवर्क में आपको मिल गए. चलो और आगे सॉल्व करें. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.5. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.5. अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स. नंबर ऑफ टन्स आर गिवन टू अस. n is equal to 800 tons and area of cross section A is equal to 2.5 into 10 raised to minus 4 meter square.
carries a current of 3 ampere. Current I is given 3.0 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. We have studied the magnetic field line diagram of a solenoid. If according to the direction of current flow, we can decide the direction of magnetic field. Suppose current is flowing like this, in this manner. If you look from this side, then it appears to be in anti-clockwise direction. Anti means north. This pole will behave as north and south. So we know that magnetic field line is from south to north inside the bar magnet. So here you will get this type of magnetic field line, and outside the solenoid magnetic field lines will be like this. And magnetic field line of solenoid is same as the magnetic field line diagram of bar magnet. So here we can say that magnetic field of solenoid has same pattern as that of bar magnet, and its direction can be found out using the direction of electric current. So we can find the direction of magnetic field from the direction of electric current. So magnetic field of solenoid has same pattern as that of bar magnet. Therefore we can say that solenoid behave as a bar magnet. Next, what is its associated magnetic moment? अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को पूछ रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, निया NIA. नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिए गए कितने, 800. करंट 3 एम्पियर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁴. चल ये 2 जीरो गए, 10⁻⁻². 8 इंटू 3 दैट इज 24. 24 इंटू 2.5 अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, 24 इंटू 2.5 दैट इज़ नथिंग बट 60. 60 इंटू 10⁻² दैट इज़ 0.6 एम्पियर मीटर. दिस इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, 0.6 एम्पियर मीटर. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, निया फॉर्मूला लगा दो, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगी. ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.5. चलो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.3. एग्जाम्पल 5.1. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.6. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.7. आई एम गिविंग यू इन होमवर्क. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.3, example 5.1, exercise numerical 5.6 and exercise numerical 5.7 I am giving you in homework. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.8. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.8. A closely wound solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. क्या दिया है, 2000 टन्स, n इज इक्वल टू 2000 and area of cross section A is equal to 1.6 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर. I कितना हो गया, 4 एम्पियर. is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane. is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane. चलो सोलेनॉइड को ऐसे रख दिया है, ठीक है. it is free to turn anywhere in this horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid?
फर्स्ट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अब याद रह गया होगा, निया, NIA। क्या बने? 2000 टन्स इलेक्ट्रिक करंट 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो ये गया -1, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1.6, 8 इंटू 1.6 करें तो क्या बनेगा? 12.8 इंटू 10⁻⁻⁴। सो दैट इज़ नथिंग बट 1.28। यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो पार्ट बी पे आ जाते हैं। What is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10⁻² Tesla is set up at an angle 30 degree with the axis of solenoid? तो solenoid behave as a bar magnet. It means that is nothing but magnetic dipole. So magnetic moment will be along the axis of solenoid which makes an angle 30 degree with magnetic field. तो कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है और हमें क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं? फोर्स एंड टॉर्क। नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या बनेगा मुझे बताओ? व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड, मान लो कि ये कुछ सोलेनॉइड बिहेव एज ए डायपोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम. So we can write F net is equal to Fn minus Fs, but force acting on north pole is same as the force acting on south pole. F minus F that is 0. मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा? 0. तो कोई फोर्स लग रहा नहीं है. अब क्या पूछे? टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड. टॉर्क क्या बनेगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा. चलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिली हमें? 1.28 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है? 7.5 इंटू 10⁻² साइन 30 वैल्यू क्या बनेगी? 1/2. सो 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻² इंटू 1/2 क्या बने? कैलकुलेट करो, मिलेगा 0.048 न्यूटन मीटर. तो टॉर्क मिलेगा 0.048 न्यूटन मीटर. तो तीनों केस हमने सॉल्व कर लिए. केस तो दो ही हैं, एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और दूसरे केस में दो चीज़ें निकालनी है, नेट फोर्स और टॉर्क. सो बोथ द केस वी हैव सॉल्व्ड. तो आज आप लोगों को हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल कौन से करवा दिए? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 5.4, 5.5 एंड 5.8. एग्जाम्पल कौन से करवाए? एग्जाम्पल 5.2 एंड 5.4 जो होमवर्क में दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. उसे सॉल्व करके रखिएगा. आगे और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. आई एम स्टॉपिंग हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.